اسپین کے شہر اندلوزیا میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام سنٹیاگو تھا۔ اس لڑکے کو گھومنا پھرنا اور آزادی بہت پسند تھی، اس لیے سنٹیاگو نے اپنے باپ کے ساتھ ضد کی اور اپنے باپ کو مجبور کیا کہ وہ اسے کچھ بکریاں خرید کے دے تاکہ وہ شیفرڈ بن سکے اور اسی بہانے وہ مختلف گاؤں اور شہروں میں گھومنے کا اپنا شوق بھی پورا کر سکے۔ اس کے باپ نے اسے بکریاں خرید دیں جنہیں وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چراتا پھرتا۔ کچھ دن پہلے سنٹیاگو تعریفہ نامی گاؤں میں ایک لڑکی سے ملا تھا اور اب اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دوبارہ اسی گاؤں میں جائے تاکہ اس لڑکی سے ملاقات کر سکے۔ اس لیے وہ اپنی بکریوں سمیت تعریفہ نامی گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ تعریفہ کے راستے میں رات ہو گئی۔ سنٹیاگو نے سوچا کہ اسے آرام کر لینا چاہیے اور صبح اٹھ کے وہ آگے چل دے گا۔ قریب ہی سنٹیاگو کو ایک پرانا سا چرچ نظر آیا جو بالکل ویران پڑا تھا۔ سنٹیاگو نے اپنی بکریوں کو اس چرچ کے اندر گھسایا اور خود باہر آ کے ایک سیکامور نامی درخت کے نیچے سو گیا۔ سوتے ہوئے اس نے ایک خواب دیکھا کہ مصر میں پیرامڈس کے نیچے بہت زیادہ خزانہ دبا ہوا ہے اور وہ خزانہ سنٹیاگو کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور سوچا کہ آج وہ ضرور کسی سے اس خواب کا مطلب پوچھے گا، کیونکہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ خواب دیکھ چکا تھا۔ صبح اٹھ کے وہ ایک عورت کے پاس گیا جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی۔ عورت نے کہا کہ وہ اسے اس کے خواب کی تعبیر بتا تو دے، لیکن اسے وعدہ کرنا ہوگا کہ جب اسے وہ خزانہ مل جائے گا تو اس خزانے کا 10واں حصہ اس عورت کو دے گا۔ شیفرڈ نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، جب اس کے پاس اتنا زیادہ خزانہ ہوگا تو اسے 10واں حصہ کسی اور کو دیتے ہوئے کوئی اور محسوس نہیں ہوگی۔ عورت نے شیفرڈ سے کہا کہ وہ فوراً مصر کی طرف نکل جائے اور پیرامڈس کے نیچے جا کے کھدائی کرے، وہاں پہ خزانہ موجود ہے جو واقعی شیفرڈ کو مل جائے گا۔ اس عورت کی بات سن کے شیفرڈ کو یقین نہ آیا۔ اس نے اس عورت کو فراڈ اور جھوٹا سمجھا اور کہا کہ یہ سب کچھ تو میں پہلے ہی خواب میں دیکھ چکا ہوں، اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ واپسی پہ شیفرڈ بازار میں کسی کام سے رکا۔ وہیں پہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ شیفرڈ کا دل اس بوڑھے کے ساتھ باتیں کرنے پہ بالکل بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن اچانک ہی اس بوڑھے نے کہا کہ وہ اسے اس خزانے کو حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ شیفرڈ نے حیرت سے اس بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا، لیکن پھر فوراً ہی اسے خیال آیا کہ یقیناً اس عورت نے اس بوڑھے آدمی کو میرے پیچھے لگایا ہوگا تاکہ مجھے بیوقوف بنا سکے۔ لیکن اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ وہ کسی عورت کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس بوڑھے آدمی نے سنٹیاگو کے والد اور والدہ کا نام زمین پہ لکھا اور ساتھ ہی کچھ ایسے راز بھی لکھ ڈالے جو سنٹیاگو نے کبھی کسی کو نہیں بتائے تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد سنٹیاگو بہت حیران ہوا اور توجہ سے اس بوڑھے آدمی کی بات سننے لگا۔ بوڑھا بولا کہ وہ اسے اس خزانے کا پتہ بتا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسے اپنی بکریوں کا 10واں حصہ دے دے۔ شیفرڈ کہتا ہے کہ وہ اسے اپنی بکریوں کا حصہ تو نہیں دے سکتا، لیکن وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے اس خزانے کا 10واں حصہ ضرور دے گا۔ بوڑھا جواب دیتا ہے کہ میں تمہیں کسی ایسی چیز کے بدلے کوئی راز کیسے بتا سکتا ہوں جو ابھی تک تمہاری اپنی ملکیت ہی نہیں۔ لڑکا یہ سن کے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ بوڑھا اسے کہتا ہے کہ جب آدمی چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے خوابوں اور منزل کے بارے میں بڑا پرجوش ہوتا ہے اور ان کے پیچھے جانے سے ڈرتا نہیں، لیکن جیسے جیسے بندے کی ایج گزرتی جاتی ہے بندہ منفی خیالوں میں گھرنے لگتا ہے اور اسے اپنی منزل کو پانا اور خوابوں کو پورا کرنا امپاسبل سا لگنے لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اپنی منزل کے حصول کے لیے نکل پڑتا ہے تو ساری کائنات اسے اس کی منزل کے حصول میں مدد کرتی ہے۔ بوڑھے کی باتیں سن کے سنٹیاگو سوچ میں پڑ گیا اور آخر یہ فیصلہ کیا کہ اسے بوڑھے آدمی کی بات مان لینی چاہیے۔ سنٹیاگو نے اسی وقت اپنی بکریوں کا 10واں حصہ چھوڑ کے باقی کی ساری بکریاں فروخت کر دیں اور ان کے بدلے کچھ پیسے اور کچھ سونے کے سکے جمع کر لیے اور بکریوں کا 10واں حصہ اس بوڑھے آدمی کو پیش کر دیا اور سفر پہ نکلنے کے لیے تیاری کر لی۔ جاتے ہوئے اس بوڑھے آدمی نے لڑکے کو خزانے تک پہنچنے کے لیے ہدایات دیں اور ساتھ 2 پتھر بھی عنایت کیے جن کی مدد سے وہ قدرت کے اشاروں کو اچھی طرح سمجھ کے ان کے مطابق اچھا فیصلہ کر سکے اور ممکنہ مصیبت سے نجات پا سکے۔ اس کے بعد سنٹیاگو ایک قریبی بحری اڈے پہ پہنچ گیا اور افریقہ کی طرف جانے والی ایک شپ پہ سوار ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ موراکو کے ایک شہر تنجیر میں پہنچا اور وہاں کچھ دن قیام کیا تاکہ سفر کی تھکان کم ہو تو وہ آگے نکلے۔ لیکن ابھی وہ تنجیر میں ہی تھا کہ 5 ڈاکوؤں نے سنٹیاگو پہ اچانک حملہ کیا اور اسے اس کے سارے پیسوں اور سونے کے سکوں سے محروم کر دیا۔ سنٹیاگو بہت دل برداشتہ ہوا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ یار اس نے یہ سفر اختیار ہی کیوں کیا، اس سے اچھا تھا کہ وہ اپنی بکریاں ہی چراتا رہتا اور اس سفر پہ نہ نکلتا۔ اب وہ بالکل خالی ہاتھ ہے، لیکن پہلے کم از کم اس کے پاس بکریاں تو تھیں۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سنٹیاگو واپس بھی نہیں آ سکتا تھا اور اگر واپس آ بھی جاتا تو کیا کرتا۔ اس لیے سنٹیاگو نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھے گا اور خزانے کو تلاش کرے گا۔
तंजीर में संटियागो एक क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान पे पहुंचा। संटियागो ने उस दुकानदार से कहा कि वो उसकी दुकान पे पड़े हुए पुराने क्रिस्टल्स को अच्छी तरह रगड़ के चमका सकता है, जिससे उसके पुराने क्रिस्टल्स भी बिकने लगेंगे, और बदले में संटियागो उस दुकानदार से सिर्फ 2 वक्त की रोटी का मुतालबा करता है। दुकानदार संटियागो को अपनी दुकान पर रख लेता है। जैसे संटियागो एक पुराने एंटीक किस्म के क्रिस्टल को साफ करके रखता है, तकरीबन उसी वक्त एक गाहक दुकान में आता है और उसे वो क्रिस्टल पसंद आ जाता है और वो आदमी उस क्रिस्टल को खरीद लेता है। उसी दिन उस दुकान से कुछ और पुराने क्रिस्टल्स भी बिक जाते हैं। दुकानदार सोचता है कि क्यों ना संटियागो को मुस्तकिल अपने पास काम करने के लिए रख ले और उसे बाकायदा तनख्वाह भी दिया करे। संटियागो ने तकरीबन 6 महीने के लिए क्रिस्टल्स की दुकान पर काम किया। इस दौरान वो नए नए बिजनेस आइडियाज़ लाता रहा और क्रिस्टल्स की सेल्स में इजाफा होता रहा, और संटियागो भी दुकानदार से मिलने वाली तनख्वाह और बोनस को जोड़ता रहा ताकि अपने अधूरे मिशन को मुकम्मल कर सके। एक दिन उसे पता चला कि मोरक्को से एक कारवान निकलने के लिए तैयार है जो सहारा डेजर्ट से होता हुआ मिस्र जाएगा। संटियागो फौरन उस दुकान के मालिक से मिला, उससे इजाज़त ली और कारवान के साथ जा मिला। कारवान में संटियागो की मुलाकात एक इंग्लिश मैन से होती है। इंग्लैंड से आया हुआ यह आदमी संटियागो को बताता है कि वो एक अल्केमिस्ट की तलाश में जा रहा है जिसकी उम्र तकरीबन 250 साल है, और वो अल्केमिस्ट लोहे और दूसरी धातुओं को सोने में बदलने की सलाहियत रखता है। जब संटियागो और वो इंग्लिश आदमी अल्केमिस्ट के गांव में पहुंचते हैं तो गांव से थोड़ी दूर 2 कबीलों में जंग छिड़ जाती है, इसलिए वो दोनों उसी गांव में रुक जाते हैं। वो अल्केमिस्ट के घर का पता पूछते हुए एक कुएं पे पहुंच जाते हैं जहां पे कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल रही होती हैं। वहीं संटियागो की मुलाकात एक फातिमा नामी लड़की से होती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद भी संटियागो रोजाना उस कुएं पे जाता है और फातिमा से बातें करता है। जब वो इंग्लिश आदमी और संटियागो अल्केमिस्ट के पास जाते हैं तो अल्केमिस्ट उस इंग्लिश आदमी से कहता है कि इतने लंबे अरसे से तुम मेरी तलाश में हो, क्या इस दौरान कभी तुमने खुद कोशिश की है कि तांबे और दूसरी धातुओं को सोने में कन्वर्ट कर सको? इंग्लिश आदमी जवाब देता है नहीं, उसने कभी कोशिश नहीं की। जिस पे अल्केमिस्ट कहता है कि फिर जाओ और पहले कोशिश करो। संटियागो को उस गांव में रहते हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं और इतना लंबा सफ़र करते हुए संटियागो कुदरत के इशारों को समझने लगता है, और उस पहले वाले बूढ़े आदमी के दिए हुए 2 पत्थर अब भी उसके पास होते हैं। एक दिन वो सुबह उठता है तो 2 बाजुओं को लड़ते हुए देखता है और समझ जाता है कि इस गांव पे हमला होने वाला है, इसलिए वो गांव के सरदार के पास जाता है और कहता है कि एक फ़ौज उस गांव पे हमला करने वाली है। जिसके बाद सरदार अपने गांव की फ़ौज को हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दे देता है और साथ संटियागो से कहता है कि अगर उसकी बात पूरी ना हुई तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उससे अगले दिन एक फ़ौज वाकई उस गाँव पर हमला कर देती है और पेश की तैयारी होने की वजह से उस गाँव की फ़ौज जंग जीत जाती है। गांव का सरदार संटियागो से बहुत मुतासर होता है और इनाम में उसे ढेर सारे सोने के सिक्के इनायत करता है और अपने गांव में कौंसलर भी बना देता है। अब संटियागो सोचता है कि उसे उस गांव में रुक जाना चाहिए, उसके पास सोने के सिक्के भी हैं और वो उस गांव में कौंसलर भी है, और सबसे अहम बात यह कि फातिमा भी यहीं रहती है। अगले दिन सुबह जब संटियागो कुएं पे फातिमा से मिलता है तो फातिमा उसकी बातों से इत्फाक नहीं करती। फातिमा संटियागो से कहती है कि मैं एक सहराई औरत हूँ और सहराई औरतों को इंतज़ार करने की आदत होती है, इसलिए तुम मेरी फिक्र ना करो और तुम्हारा जो भी मकसद है पहले उसे पूरा करो। उसी रात संटियागो अल्केमिस्ट से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। अल्केमिस्ट संटियागो को समझाता है और ख़ुद भी संटियागो के साथ जानने की तलाश में निकल पड़ता है और संटियागो से कहता है कि जहाँ तक मुनासिब हुआ वो इस सफ़र में उसका साथ देगा। जब वो दोनों सफ़र पर निकलते हैं तो कुछ आगे जाके एक कबीले के लोग उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और जासूसी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। अल्केमिस्ट कबीले के सरदार को बताता है कि वो जासूस नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ शिकार के लिए निकले थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कबीले वाले यकीन नहीं करते और संटियागो के सोने के सिक्के छीन लेते हैं। अचानक अल्केमिस्ट कबीले के सरदार से कहता है कि ये लड़का एक जादूगर है जो 3 दिन में अपने आप को हवा में बदल लेगा और यह हवा इतनी तेज़ हो सकती है कि तुम्हारे सारे कबीले को उड़ा ले जाए। यह सुन के सरदार खूब हंसता है और फिर गुस्से में उससे कहता है कि अगर इस लड़के ने 3 दिन के अंदर अंदर अपने आप को हवा में ना बदला तो वो उन दोनों को कत्ल करवा देगा। जब वो दोनों अकेले होते हैं तो संटियागो को अल्केमिस्ट पे बहुत गुस्सा आता है और उसे कहता है कि ऐसा करना नामुमकिन है और ये कि अब हम दोनों जान से जाएंगे। अल्केमिस्ट जवाब देता है कि अगर मैं ऐसा ना कहता तो अब तक हम दोनों मारे जा चुके होते, लेकिन अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी जान बचा सकें। अल्केमिस्ट संटियागो से कहता है कि ज़िंदगी और मौत के खौफ को ख़त्म करके सहरा की ज़बान को समझो और कुदरत के साथ हम आहंग होने की कोशिश करो। तीसरे दिन संटियागो सहरा में रेत के सबसे ऊंचे टीले पर जा खड़ा होता है और सूरज की तरफ मुंह करके अपनी ज़ात को कायनात के साथ हम आहंग करने की कोशिश करने लगता है और आखिरकार एक तेज़ तूफान लाने में कामयाब हो जाता है, जिससे डर के कबीले के लोग उन्हें फ़ौरन छोड़ देते हैं
जिस के बाद अल्केमिस्ट और संटियागो आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर सफ़र करने के बाद वो एक मोंग की झोंपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। उस झोंपड़ी के अंदर अल्केमिस्ट तांबे की बड़ी सी धात को सोने में बदलता है और उस सोने के 4 पीस करता है। एक अपने पास रखता है, एक संटियागो को देता है और एक मोंग को, और चौथा पीस मोंग के पास मानत के तौर पर रख देता है और हिदायत करता है कि जब संटियागो अपने सफ़र से वापस लौटेगा तो ये पीस तब वो संटियागो को देगा। यहाँ से अल्केमिस्ट किसी और तरफ निकल जाता है और संटियागो पिरामिड्स की राह लेता है। पिरामिड्स के पास पहुंचकर संटियागो खुदाई शुरू कर देता है ताकि खजाने को निकाल सके। खुदाई करने के दौरान कुछ चोर संटियागो के पास पहुंच जाते हैं और उसका सोने का पीस छीन लेते हैं और तवक्को करते हैं कि यकीनन संटियागो ने इसी जगह पे कुछ और सोना भी छुपाया होगा, जिसे निकालने के लिए वो संटियागो पे तशद्दुद करते हैं। संटियागो उनके तशद्दुद की वजह से मजबूर होकर उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बता देता है कि किस तरह वो अपने ख्वाब के मुताबिक सफ़र करता हुआ खजाने की तलाश में यहाँ पहुँचा है। उसकी बात सुन के चोर बहुत हंसते हैं। उनमें से चोरों का सरदार कहता है कि ऐसा ये ख्वाब मुझे भी आया था। मैंने ख्वाब में देखा कि स्पेन में तारीफा नामी एक गांव है। उस गांव में एक टूटे हुए चर्च के पास सीकामोर नामी एक दरख्त है जिसके नीचे खजाना दबा हुआ है, लेकिन मैं तो कभी उस खजाने को ढूंढने नहीं निकला, भला इस तरह कोई अपने ख्वाबों के पीछे लगता है। इसके बाद चोरों का सरदार संटियागो को ज़हनी तौर पर माजूर समझ के छोड़ देता है। चोरों के जाने के बाद संटियागो खूब हंसता है और अब उसे पता चलता है कि असल में उसका खजाना तो उसी दरख्त के नीचे दबा हुआ था जिस दरख्त के नीचे वो सोया था, क्योंकि उसके ख्वाब में मिस्र से मुराद वही सीकामोर नाम का दरख्त था जो सबसे पहले मिस्र में उगा था और उसके बाद बाकी दुनिया में पहुंचा था। संटियागो वहां से वापसी का सफ़र शुरू करता है और आके उसी सीकामोर नामी दरख्त के नीचे से खजाना निकाल लेता है और वापस फातिमा के गाँव की तरफ चल पड़ता है। अब इस कहानी में लेसन ये था कि बंदे को कभी भी अपने ख्वाबों की तलाश में जाने और उनके लिए मेहनत करने से नहीं रुकना चाहिए। अब खजाने का ख्वाब उस चोर को भी आया था, लेकिन उस चोर को आथर ने ऐसे लोगों के तौर पे पेश किया है जो अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और अमूमन नाकाम रहते हैं, जबकि अपने ख्वाबों के लिए मेहनत करने वाले लोग अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाते हैं। इसके लिए उनके रास्ते में मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। जैसे संटियागो का तंजीर में कुछ अरसे के लिए क्रिस्टल्स की दुकान पे काम करना पड़ा था, लेकिन उसने अपने मकसद को नहीं भुलाया और एक दिन कामयाब होके रहा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।